to Madhya Pradesh state, because there is one place called Chandel in Madhya Pradesh. So वहां पर उस तारीख को बनाया जाता है, इसीलिए the name Chanderi is. तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है. चलिए going to the next question, question number 55. I want you to solve this question quickly. इसका आंसर सबको आना चाहिए. Yes, Saurabh, what is the answer of this question? D, sir. D. Who is this? Sonali. D. Ikra. Sir, it can be used in all, I think. All, right? So, as I told you, कि most of the times in science and technology, whenever we have 1, 2, 3 options, most of the time they are correct. Am I right? Do you remember that rule of thumb which I told to you? अब यहाँ पर पूछा गया है जीपीएस टेक्नोलॉजी कहाँ का यूज की जाती है. अब देखिए ये सवाल से ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है. That where these technology can be used, right? So in which of the following areas GPS technology can be used? Options: mobile phone operations, yes, सबको तो पता होगा कि mobile phone we have GPS. Second, banking operation, yes, it can be used. And third is controlling the power grids, yes. तो only 1 and 2 option अगर होता तो आप मार्क करते, because we are not sure कि whether GPS can be used in controlling power grids or not. अगर suppose option 1 and 2 होता तो आप कंफ्यूज हो जाते. बट यहाँ पर यूपीएससी ने टू रिमूव दैट कंफ्यूजन दे हैव नॉट गिवन एनी ऑप्शन लाइक 1 and 2, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 and 3. इज इट क्लियर? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू आर लाइक, सबको ज्यादा जो फियर होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है और वो करंट इकोनॉमी का होता है. एम आई राइट? बट इसके सवाल बहुत आसान होते हैं अगर आप उसको अगर आप अच्छी तरीके से पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है कुछ क्वेश्चन पूछने का, उस ट्रेंड को अगर समझोगे तो बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं. यहाँ पर इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन कि कहाँ पर जीपीएस यूज किया जा सकता है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वन वी कैन से ट्रिक व्हिच आई टोल्ड यू कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज करेक्ट. फाइन. चलिए going to the question number 56. आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो न्यूज में था, उसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था. अगेन कोर इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आ रहा है तो अटेम्प्ट कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो यू शुड स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया manages and services government of India's securities but not any state government securities. The statement is correct or wrong? Rule of thumb मैंने आपको बताया था कि इस स्टेटमेंट में likely mistake कहाँ होने के चांसेस हैं. Yes, yes. What are the chances of having likely mistake in this statement? Any state government. Any state government. Very good. तो पहला statement wrong हो सकता है. Second statement, treasury bills are issued by the government of India and there are no treasury bills issued by the state governments. Correct or wrong? Recently हमने देखा है, recently GST compensation के बाद एक issue न्यूज़पेपर में आ रहा था और यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि state government can borrow the money by issuing treasury bills or T-bills. So the second statement is correct or wrong? What do you think? Wrong. It is wrong, right? What is the likely mistake here? कि no treasury bills are issued by the state government, ये wrong हो सकता है. Third statement, treasury bills offer are issued at a discount from the par value. अब देखिए एनीवेज ये थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, दैट डजंट मैटर. अगर आपको फर्स्ट पहले के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है ये अगर आपको पता चल गया तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर. Am I right? So can you tell me what should be the answer of this question? B. B.
3 only. Yes, sir. Am I right? सबको समझ में आ रहा है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Right? अब now coming to this statement कि ये इसका मतलब क्या है कि treasury bills offer are issued at discount from the par value. Can anybody tell me what is the meaning of this statement? अब ये statement सही है, but इसका मतलब क्या है? Like discount from the par value का मतलब क्या होता है? Anyone knows what is the meaning of this thing? Omar, do you know? Sir, if you are buying, yes, sir. So if you are buying treasury bills at, like, let's consider 800 rupees, then they will give 1000 rupees after 1 year, or like after the maturity period. So that is the discount. They don't give you interest on that Right. thing. So it is like zero coupon or zero interest treasury bills, but they give discount on this one. So discount That means is what? illegal. For example, like you rightly said, for example, अगर वो treasury bill 1000 रुपए का है, the value, the par value of that bill is 1000 rupees. So you can get that 1000 rupees bond by 800 rupees. तो पहले से डिस्काउंट करके दिया जाता है. पहले से मतलब क्या कि 1000 रुपए का बॉन्ड होगा, आप खरीदोगे और वो आपको मिलेगा 800 रुपए में, और 1 साल के बाद आपको वो 1000 रुपए आपको वापस मिलेंगे. समझ में आ गया? What is the meaning of discount from Yes, the sir. par value? Yes, sir. So most of the bills, treasury bills, are Yes, sir. issued in such way. Okay? So that's why third statement is correct. Chale, going to question number 57. We will discuss this last question, then we'll stop. Sir. Again, basics of science का question है. Try to find out the answer of the question. Try to find out the likely mistakes in the statement, and on that basis, try to find out the answer by looking at the options. इसकी आदत होनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. Now this question was asked because Earth's magnetic field was in news in last year. That is why the question has been asked. Yes. Anyone knows answer क्या हो I सकता है think two इसका? गलत होगा. Yes. Maybe A or C. ठीक है, सबसे पहले तो ये 50-50 डिसाइड कर chances लीजिए है. कि अगर कौन सा हम स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस है. Can anybody tell me कि तो कौन सा तो स्टेटमेंट गलत होने के second चांसेस है? statement तो will गलत be या सही होने के चांसेस है? टू गलत होता. second statement will be wrong, sir. सेकंड स्टेटमेंट. Then ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, yes, sir. क्यों रॉन्ग है? यस क्योंकि सौरभ. वहाँ पर number system यस. टू मच डेटा. यस. सो एज आई टोल्ड यू कि इस तरीके के जो नंबर्स वाले जो स्टेटमेंट The number तो first में भी दिया हुआ है ना, few hundreds, तो वो every few hundred thousands years. हाँ, तो वो Exactly. Thousand तो first वाले में भी दिया हुआ है. नहीं, देखिए वहां पर वो स्टेटमेंट में नंबर में और ये सेकंड वाले नंबर में थोड़ा सा एक डिफरेंस है. पहले वाले में क्या लिखा है कि द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमेशा बदलता रहता है और कुछ सालों के बाद में बदलता रहता है, वो स्टेटमेंट तो सही है. अगर जिसको ये पता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जिसने बेसिक पढ़ा है तो उसको पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. अब वहां पे क्या लिखा, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है, वहां पे फ्यू 100,000 ईयर्स है. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. चलिए, एज पर यू, यस, हु वाज सेइंग कि पहले में भी नंबर दिया हुआ है. अगर पहले में अगर नंबर दिया हुआ है तो 3 ओनली स्टेटमेंट है, 3 ओनली ऑप्शन है. इज देयर एनी 3 ओनली ऑप्शन या Oh sir. नो? तो ऑब्वियसली वो भी एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे. यस, व्हाट शुड बी द आंसर देन? इफ सेकंड स्टेटमेंट अगर इफ यू फील कि ये रॉन्ग है तो टेक अ डिसीजन. व्हाट शुड बी द आंसर? 1 only or 1 and 3 only? What about third statement? Yasmin, what do you think? When living organism originated, they One and modified the early atmosphere. One and The three statement only. should be correct or wrong? I think. एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में, एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कुछ चेंज किया या नहीं किया?
they have made the changes. Like in fact, कार्बन डाइऑक्साइड जो Yes, sir. थोड़ा होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जो आया था, that was because of the living organism, because living organism started absorbing oxygen and they started what you can say emitting out the carbon dioxide, like in the process of respiration. We have been talking about this. So 1 and 3 should be the Yes, sir. answer of this question. Question number Yes, 57. So sir. let me check it out. What is the answer of this question? Question number 57. 57C. Yes, C is correct. समझ में आ गया? How to find? अब इस तरीके की जो स्टेटमेंट होते हैं ना, ये स्टेटमेंट मैंने बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पर ये सेकंड वाला स्टेटमेंट 100% रॉन्ग है बिकॉज ऑफ नंबर, राइट? Yes, sir. So my rule of thumbs, my logic, my strategy, my understanding is working in questions or not? ऐसे हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं कि जहां पर मैंने हमारे जो रूल ऑफ थंब मैंने जो बनाए हुए हैं उससे अप्लाई होकर ऑलमोस्ट यू कैन सी कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ 100 30 to 40 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. बाकी के 15 आपको सॉल्व करने हैं बाय, मतलब वी कैन सॉल्व इट बाय स्टडी. साथ you joined lately today. Oh, yes, sir. ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव रिकॉर्डेड द सेशन, सो आई विल सेंड इट टू यू. जब भी आपको टाइम मिलेगा वो देख लेना, ठीक है? Yeah, okay. Please. Thank you, sir. सो एनी डाउट्स अबाउट दिस क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 57. देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लग तो रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इट्स वेरी इजी अगर आप थोड़ा सा लाइकली मिस्टेक्स कहां सकते हैं उसको अगर फाइंड आउट करेंगे और ऑप्शन में देखोगे तो यू कैन फाइंड. ये जो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना जो डिफिकल्ट लगते हैं वो बहुत आसान होते हैं, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं टू फाइंड आउट द आंसर. समझ में आ रहा है यूपीएससी कहां पे ट्रैप में पकड़ने की कोशिश करती है और कहां पे सवाल के आंसर इजी होते हैं? Yes, sir. इज इट क्लियर? check. Yes, sir. Yes. So shall we start? Shall we discuss question number 58? चलिए क्वेश्चन नंबर 58 एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा. The terms WannaCry, Petya, eternal blue, sometimes mentioned in the news recently, are related to. इस साल भी ऐसा सवाल आएगा, एक सवाल आएगा, 3 टर्म्स दिए जाएंगे. जैसे कि मैंने बताया था कि केमिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे. 3 केमिकल्स के नाम दिए गए थे कि उसमें से एक अगर आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ सच क्वेश्चन. समझ में आ रहा है? सिमिलर टाइप क्वेश्चन है. वो केमिकल वाला क्वेश्चन याद है सबको? देखा था कि सॉलिड दिया गया था कि ये केमिकल्स कहां यूज किया जाता है पूछा गया. तो वैसे ही सिमिलर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया. The terms WannaCry, Petya, eternal blue, sometimes mentioned in the news, is related to. These are exoplanets, cryptocurrencies, cyber attacks, mini satellites. Cyber attacks. What? Cyber attacks, sir. Cyber attacks. C. So ये न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया. Am I right? Easy question. Yes, sir. If this was easy question, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो, नहीं तो फिर आप you have to depend on magazines. अब देखिए, अब ये जो मैगजीन होता है ना, मैगजीन में ये WannaCry के बारे में, पेटिया के बारे में, एटर्नल ब्लू के बारे में इतना डिटेल में सब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है. 2 से 3 4 पेज WannaCry के बारे में बताया जाएगा, पेटिया के बारे में बताया जाएगा, एटर्नल ब्लू के बारे में बताया जाएगा. आप पूरा पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम में तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है. तो क्या लगता है आपको उतना पूरा पढ़ने की जरूरत है या सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के इस सवाल का आंसर हम निकाल सकते थे? न्यूज़पेपर पढ़कर. Getting it? तो what happens कि ये जो मटेरियल जो होते हैं, जो करंट अफेयर्स के जो मटेरियल होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें ना बहुत ज्यादा दिया हुआ होता है, लाइक बहुत कुछ दिया हुआ होता है. और जब वो बहुत कुछ पढ़ते हो तो फिर क्या हो जाता है कि आप जो बेसिक चीजें पढ़ना है वो बेसिक चीजें के लिए फिर आपको टाइम नहीं मिलता है. मतलब अगर सपोज वो मैगजीन है करंट अफेयर्स की, 1000 पेजेस आर देयर. आउट ऑफ द 1000 पेजेस ओनली 100 पेजेस आर इंपॉर्टेंट. Remaining 900 pages are not important, but you read that 900 pages, which will consume your time, and again you can say that कि पूरा 1000 पेज पढ़ने की वजह से वो जो 100 पेजेस जो हैं उसमें वो याद नहीं रहता है. तो अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ोगे
कंटिन्यूसली और रेगुलरली अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो ये करंट अफेयर्स के इस तरीके के जो क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको बेसिक देखना है कि ये है क्या चीज। इज इट क्लियर? Sir, in 56th question, Yes, sir. यस sir, in यस Zainab, 56th question number question, 56. sir, the second statement, sir, treasury bills can only be issued by central government. Sorry? Sir, treasury bills can only be issued by central government. No, it can be issued by the state government as well. State government can also issue the treasury bills. But again, with the स्टेट permission of the गवर्नमेंट के लिए union government. अभी अलाउ किया गया है ना? Yes, with the permission of the union government. इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था, याद है कि if the state government wants to issue the bonds, it has to take the consent of the union government. So yes, the state government can also issue the bonds. Because अभी हम देखे ना कि compensation में, GST compensation में, the union government say कि अगर आपको GST compensation नहीं मिल रहा है तो आप borrow करके क्या कर लीजिए, उसको compensate करके ले लीजिए। Am I right? यस सर, ये न्यूज में भी था अभी। Sorry? सर ट्रेजरी बिल वाला अभी न्यूज में भी था कि अगर आप Yes, carry on. I can hear you. Hello? सर आप जो बोरो वाला बता रहे हैं ये अभी न्यूज में था, स्टेट Yes. गवर्नमेंट वाला। Yes. जी ठीक है, चलिए, so let's stop it here today. Tomorrow we'll continue with the remaining questions. Fine? सर हेलो बोलिए। सर साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का टेस्ट कब लेंगे आप? अभी जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव जो टेस्ट लूंगा तो आई विल इंक्लूड द साइंस एंड टेक क्वेश्चंस इन दैट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट। और मनोरमा की भी उसी में होंगे सर? नॉट ओनली ऑन मनोरमा, ओवरऑल मनोरमा से भी है, और जो रिसेंटली न्यूज़पेपर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टर्म्स न्यूज में थे, आई विल इंक्लूड ऑल। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि सिर्फ मनोरमा ये में लूंगा। और ध्यान में रखिए कि डोंट focus on content, focus on the technique, focus on the how to eliminate the options, and focus on how the statements are created, how the statements are framed. उस पे फोकस करिए ज्यादा। समझ में आ रहा है what I'm trying to say? यस सर। ठीक है, चलिए, so we'll stop it here today. Tomorrow we'll continue. Thank you, sir. Yes, बोलिए। I'm not getting your voice. You please message me on my number. Sir, it's Fareen. Yes, Fareen, please message me. I'm not getting your voice clearly. Are you getting my voice? Sir, audible or not?